Hello friends, I welcome you all on Simply MBA. Today we are going to discuss about a T principle which is quite new. Here we compare between a coaching institute and a perfect T. So यहाँ पे हम मिलकर एक एनालिसिस करेंगे. This is just an analogy between a T and coaching institute. So let's begin this session. So these are the ingredients which are required for tea making. So let's begin with the first slide. Perfect tea. Our whole objective is to make a perfect tea. एक अच्छी चाय हमें चाहिए. Similarly एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट किस तरह से बनता है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे वन बाय वन कंपेयर करेंगे. राइट? So let's start with the first thing and the most important thing, that is called requirement of tea. अगर हमें चाय बनानी है तो हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, लाइक केटल, वाटर, स्टोव, टी लीफ, मिल्क एंड शुगर. दैट फॉर श्योर. इतना मिनिमम तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा अगर एक चाय हमें बनानी है. सिमिलरली हियर वी जस्ट कंपेयर between these things within coaching institute कि एक अच्छा coaching institute कैसे बन सकता है. So in this category, first thing that is called good old kettle. So हमारे पास कुछ पुरानी अच्छी केतलियां हैं जो एक अच्छी चाय बनाने में हमें मदद करती हैं, लाइक बंसल क्लासेस, एलन, आकाश इंस्टीट्यूट, बीएमसी, फिटजी, रेजोनेंस. ये कुछ ऐसी केटल हैं जो लगभग आप ये मान सकते हैं लेट 80s या अर्ली 90s में स्टार्ट हुए. दीज आर द वन जिन्होंने, जब कोई जानता भी नहीं था कोचिंग, तब इन्होंने स्टार्ट किया. एंड बंसल इज ए पाइनियर इन दिस. सो दीज आर द प्लेयर करंटली इन एन ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री. सो यहाँ पे केटल का कंपैरिजन उससे किया है कि आपकी केटल भी मायने रखती है. केटल मीन्स कोचिंग इंस्टीट्यूट. देयर आर एन नंबर ऑफ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन एवरी सिटी. देयर आर XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो दीज आर द केटल्स. सो इट मीन्स कोचिंग इंस्टीट्यूट आर द केटल्स जिसमें अल्टीमेटली चाय बनाई जाएगी. राइट? नेक्स्ट थिंग दैट इज द मॉडर्न केटल that electrify your experience. If you see the ad of Baiju, Vedantu, One Academy and other online player right now, I think more than 20 edutech companies. They are in education, especially they are giving you a certain technology. They are in online market. So अभी तो कुछ अलग ही चल रहा है. It's a kind of खिचड़ी that online player in coming in offline center and offline center coaching institute are coming into the digital platform. But moreover, their idea is this to electrify your experience. They will say कि नहीं आप इसको experience कीजिए, you will feel कि it's a totally different tea. So similarly, जैसे मैंने पहले बताया आपको, is a kettle is a platform, is a coaching institute. So itself kettle can't do, एक खाली kettle आपको चाय नहीं दे सकती है, but उस kettle में कुछ और ingredient जब हम मिलाएंगे, then ultimately we get a good tea or good result or a good student or a result oriented student along with the revenue. So here we have example like Baiju, Vedantu's, an Academy, Extramark, Topper, Merit Nation. There are n number of other players. Ludo. There are, अभी मैं याद करने जाऊं तो it's a long list, right? So these are the platform, these are the coaching institute. जैसा चाय में केटल की वैल्यू है, वैसे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की वैल्यू है जिसमें चाय अल्टीमेटली बनेगी. The next thing is water that everyone is looking for. वाटर की यहाँ पर उपमा जो दी गई है या एनालॉजी जो की गई है, that is with students. Because at the end of the day उसी वाटर से आपको चाय बनानी है. तो चाय में जितना इंपॉर्टेंट वाटर है, चाय में जितना इंपॉर्टेंट पानी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में उतना ही इंपॉर्टेंट है वाटर. इसीलिए आपने देखा होगा कि आप कोलकाता में चाय पियो, मुंबई में कटिंग टी पियो,
महाराष्ट्र में कुछ और पियो, नॉर्थ इंडिया में कुछ पियो, देहरादून, हिमाचल, you feel the difference. So this is not a difference because of tea and other ingredients. Sometimes it's a different of water. So that's why water is important. Everybody is looking for that water. Because at the end of the day, kettle तभी काम आएगी जब उसमें water गिरेगी. So water को कैसे यहाँ पे segment किया गया है? Mode of their preparation. There are two way, online and offline. Right now, so people are coming with the hybrid mode. You can opt both the way, right? But technically here you can divide or segment the student in two categories. One is in taking classes online and one is offline. So that's why kettle को एक बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस तरह का kettle है, क्या वो ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में है, कहाँ पे उसका मार्केट सेगमेंट ज्यादा है या कहाँ उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है स्टूडेंट्स में. द नेक्स्ट थिंग इज पॉकेट. यहाँ पे दूसरी चीज जो हमें ध्यान देनी है वो है स्टूडेंट की पॉकेट, टेक्निकली द पेरेंट्स की पॉकेट, कि वो कितना अलाउ करती है. क्या पेरेंट्स की पॉकेट इस तरह की है कि वो एक महंगी कोचिंग को अफोर्ड कर पाए, या किस तरह का उसके पेरेंट्स का लाइफ स्टाइल है, या किस तरह की उनकी पेइंग कैपेसिटी है. उसी अकॉर्डिंगली वी डिवाइड कि वो बच्चा हमारे पास आएगा या नहीं आएगा. The third thing that is called intelligence grade of student. Here we need to divide the student as per their intelligence. That's why most of the coaching institute, especially in offline, they are running separate batch for toppers. अब उसको एलुमिनाटी कह दो, उसको स्पेशल रैंकर ग्रुप कह दो, उसको बेस्ट ग्रुप कह दो, उसको अल्टीमेट कह दो, या आप उसे कुछ भी कह सकते हो. बट एवरी स्टूडेंट इन रनिंग a certain set of student, उनके लिए वो अलग से तैयारी कर रहे हैं, उनको अलग से फैसिलिटी दे रहे हैं. यू नेवर, मतलब अभी इफ आई शेयर विद यू, तो उनको इस तरह की फैसिलिटीज मिल रही है जिस तरह से एक सेलिब्रिटी को फैसिलिटी मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर अर्ली क्लासेस. इट मीन्स स्टूडेंट इन 6th 7th 8th 9th दे आर टेकिंग प्रिपरेशन, दे आर टेकिंग क्लासेस अभी से फॉर जेई और नीट. सो दैट्स वाई दिस इज द सेगमेंटेशन. सो यहाँ पे वाटर का जो कंपैरिजन है, जो एनालॉजी है, दैट इज विद स्टूडेंट्स, दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दिस, राइट. नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ योर स्टोव. अब आपके पास कैटल आ गई है, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है. दूसरी चीज आपने इसमें वाटर भी डाल दिया. सो नाउ कैटल इज रेडी, वाटर इज रेडी. हो सकता है आपके पास कुछ भी स्टूडेंट हो सकते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट नंबर्स and not only about online offline, sometimes it's about grades, what kind of intelligence. So it depends, it's very institute to institute. यहाँ पे इंस्टीट्यूट का मतलब केवल नेशनली रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, आपका कोई सिटी का इंस्टीट्यूट हो. तो व्हेन दैट इंस्टीट्यूट इज रेडी टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर देयर एकेडमिक्स और देयर एंट्रेंस, सो ही इज रेडी एज एन कैटल. द सेकेंड थिंग, यू हैव सर्टेन चंक ऑफ स्टूडेंट. सो अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कैटल भी है, आपके पास पानी भी है, बट अगर आपके पास स्टोव नहीं है तो फिर आप चाय नहीं बना सकते. सो हियर यू नीड ए स्टोव, एंड स्टोव इज योर एकेडमिक सिस्टम, योर मैनेजमेंट सिस्टम एंड योर आईटी सिस्टम. केवल एक सिस्टम नहीं, इट्स एन इंग्रेडिएंट और इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ दीज थ्री. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. बंसल का अगर हम एग्जाम्पल लें, इट्स परफेक्ट इन देयर एकेडमिक सिस्टम. कोटा की अगर बात करें तो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड टीचर्स जो बच्चों को तैयारी करवाते थे केवल बंसल क्लासेस में पढ़ने के लिए, कि वो बंसल का एंट्रेंस क्वालिफाई कर दें, उसके बाद तो बंसल उनको क्वालिफाई करवा ही देगा आईआईटी या नीट में, एंड स्पेशली इन इंजीनियरिंग आईआईटी. एंड द लेवल ऑफ बंसल इज क्वाइट हाई एकेडमिकली. बट आज बंसल नहीं है. If I talk about in 2022, Bansal is no more as in coaching institute. Only because it have only academic system. उससे भी काम नहीं चलेगा. You need management system also. चीजें कैसे लिंक होंगी? आप पढ़ा तो रहे हो बट आपकी चीजें सिंक ही नहीं है, आपके पास वो विजन ही नहीं है अगले साल देखने का. So in that case, definitely tomorrow, day after tomorrow, 5 years down the line, your system will collapse. बड़े हाथी को ज्यादा टाइम लगेगा, छोटा हाथी जल्दी कोलैप्स हो जाएगा.
and the IT system, because now this is the era of IT. We are just entering into the industry 4.0 when AI and IoT is a part of our daily life. Alexa is a part of our daily life. So इसमें अगर कोई IT सिस्टम को इग्नोर करता है या जिसका IT सिस्टम बहुत ही पुराना है, ग्रेजुअली लोग उसको ओल्ड मानना कंसिडर करेंगे एंड ग्रेजुअली यू विल फील कि आप धीरे धीरे इस रेस से बाहर चलेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टोव, जो ये गैस है, ये जो गैस चूल्हा है आपका, दिस इज हेल्प यू आउट कि जब आपके पास बच्चे हैं, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो दिस सिस्टम अगर नहीं है किसी के पास, सो लुक इनटू इट, बिकॉज दिस सिस्टम कैन हेल्प यू कि जिससे वो पानी उबले, उसमें आप चाय पत्ती डालो, तभी जाके आपका चाय बन पाएगी. द नेक्स्ट थिंग इज दैट लीफ ऑफ कोटा. कोटा मैंने इसलिए नाम दिया है बिकॉज इन जनरल परसेप्शन पीपल थॉट कि बेस्ट माइंड, बेस्ट जो तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, वो शायद कोटा में होते हैं वो फैकल्टी, बट इट इज नॉट ट्रू बिकॉज अच्छा फैकल्टी तो कहीं भी हो सकता है. सो दिस इज जस्ट एन एनालॉजी. चाय पत्ती की जो यहाँ पर उपमा दी गई है वो दी गई है फैकल्टी को. आपके पास स्टोव भी है, आपके पास स्टूडेंट भी हैं, आपके पास थोड़ा बहुत सिस्टम भी है, स्टोव भी है चाय बनाने का, बट अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है तो केवल आप गर्म पानी पिला सकते हो, उबला पानी पिला सकते हो, पर आप चाय नहीं ऑफर कर सकते. सो दैट्स वाई फॉर एन टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गुड टी. इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह की आपने चाय पत्ती यूज की है, बिकॉज चाय पत्ती प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट्स वाई देयर आर वेराइटी ऑफ चाय पत्ती इज इन द मार्केट. सो दैट्स वाई यू नीड टू फिगर इट आउट कि अच्छा टीचर आपके पास जरूर रुके. कई लोग क्या करते हैं कि टीचर की सैलरी थोड़ा ही ज्यादा होते ही आपको टीचर बुरा लगने लग जाता है और आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढने लग जाते हो. आपको लगता है कि नहीं, ऐसा ही एक नया टीचर भी पढ़ा सकता है, बट ये ट्रू नहीं. जिसको एक सर्टेन ईयर का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं इस चाय पत्ती का रोल प्ले करेगा. वो आपकी चाय को ऐसे कलर देगा कि ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी विल से कि बहुत ही अच्छी चाय बनी है. सो फैकल्टी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, बिकॉज किस तरह की चाय पत्ती है आपकी, उस तरह की आपकी चाय होगी. सो इन एंटायर टी प्रोसेस, टी प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अदरवाइज आप गर्म पानी पिला सकते हो, मीठा पानी पिला सकते हो, दूध पानी पिला सकते हो, चाय नहीं पिला सकते. सो दैट्स वाई टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द क्वालिटी ऑफ लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड कलर ऑफ मिल्क. बट इतने से ही आपकी अच्छी चाय नहीं बन जाएगी, क्योंकि चाय में कलर भी चाहिए. अभी तो आपने काली चाय बनाई है, सो इट मीन्स आपके पास केटल भी है, आपके पास स्टोव भी है, आपके पास वाटर भी है, आपके पास लीफ भी है, सब बढ़िया गर्म हो रहा है. बट जब तक आप दूध नहीं लाओगे, दूध नहीं डालोगे उसमें, तब तक वो चाय का कलर नहीं आएगा. वी कैन नॉट से अ परफेक्ट टी. सो एज पर इंडियन टी, राइट. सो परफेक्ट टी के लिए हमें चाहिए होते हैं रिजल्ट. रिजल्ट आर द वन विच कलर यूर कोचिंग इंस्टीट्यूट. जो स्पेशली आईआईटी या मेडिकल का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनको पता है कि ईयर ऑन ईयर रिजल्ट की कितनी वैल्यू है. इफ यू हैव द बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट सिस्टम, बेस्ट एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बट देयर इज नो रिजल्ट, gradually people will ignore you. So that's why result is very important. So this is the responsibility of academic team to maintain, to ensure the best result, because it's color your institute. ये आपके इंस्टीट्यूट को कलर करेगा. एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स कि कलर कैसे किए जाते हैं. देखिए, इनरोल द बेस्ट स्टूडेंट इन एडवांस. जो आपको लगता है उसको एडवांस में ही इनरोल कर लीजिए, अच्छा स्टूडेंट. देयर आर डिफरेंट टूल. आकाश इज कंडक्टिंग एवरी ईयर एंथे. द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंथे टू जस्ट फिगर इट आउट कि टॉपर कौन है, क्रीम बच्चा कौन है, कौन रिजल्ट दे सकता है. एलन इज डूइंग सेम थिंग. एवरी ईयर एलन इज कंडक्टिंग talent X. Similarly, FITZY is doing FTRE. VMC is doing something else. So most of the renowned institute, and similarly in now to BYJU is doing their national exam once in a year. ठीक. So that is very important to just
हैव एन आइडिया कि कौन सा बच्चा है जो आपको रिजल्ट दे सकता है। द सेकेंड बेस्ट पॉसिबिलिटी, अगर आपके पास पैसे हैं, यू कैन बाई द रिजल्ट। अब तो इतना नहीं होता है, बट अर्लियर देयर इज एन एरा जब लोग परचेज कर लिया करते थे। रिजल्ट आ गया, उसको कुछ पैसे दे दिए और उसने कहा जी हम इनसे भी पढ़ते थे। एंड बाई सम टाइम इज नॉट दिस। कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता है, साथ में वो किसी लोकल टीचर से भी हेल्प ले रहा होता है। माइट बी लोकल टीचर इज हेल्पिंग फिनोमिनली, सो दिस वे यू कैन बाई द रिजल्ट। यू आर नॉट गिविंग द मॉनेटरी बेनिफिट, बट टेक्निकली आपने कुछ तो पढ़ाया है, तो यू कैन बाई दैट रिजल्ट। द थर्ड थिंग, एंगेज द बेस्ट स्टूडेंट्स। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी कि अगर एक अच्छा बच्चा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहा है, तो यू कैन एंगेज हिम विद योर सेल्फ, विद योर इंस्टीट्यूट, कि नहीं उनके पास तो पढ़ता था, हमसे भी हेल्प लेता था, जो आजकल काफी होता है। एक ही बच्चे का जब आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट में आप रिजल्ट देखते हो कि उसको फिटजी भी क्लेम कर रहा है, एलन भी क्लेम कर रहा है, आकाश भी क्लेम कर रहा है, XYZ भी क्लेम कर रहा है, इट्स ओनली बिकॉज किसी ने इसको DLP के थ्रू इंगेज किया है, डिस्टेंस लर्निंग, किसी ने इसको टेस्ट दिए हुए हैं, कोई इसको रेगुलरली पढ़ा रहा है, किसी ने इसको डाउट एंड सेशन दिए हुए हैं, कोई इनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसको भी वो कह रहा है कि हाँ सर इनसे भी मैंने हेल्प ली थी। बट दिस कैन डेफिनेटली कलर यूर टी। ठीक, सो दैट्स वाई स्पेशली इन द मार्केट ऑफ IIT एंड मेडिकल दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो कलर है वो रिजल्ट है। कलर की जो उपमा दी गई है, जो रंग है चाय का, जिसको अल्टीमेटली उस तरह का कलर देता है, वो है आपका रिजल्ट ईयर ऑन ईयर। एंड द लास्ट थिंग दैट इज शुगर कैन मेक और ब्रेक। जो चाय का टेस्ट होता है, ये कभी कभी और कहो मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है आपकी चीनी की मात्रा पे। चीनी का यहां पर कंपैरिजन किया गया है आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी से। सो मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बोथ, जो मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं। सो हियर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन चेंज द गेम। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, कम डालोगे, बहुत ही कम डालोगे, तो लोगों को उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी एक अच्छी परफेक्ट टी होती है। अब फीकी पीते हैं तो बात अलग है, और इतनी भी ना डाल दें कि लोग एक सिप लेने के बाद छोड़ दें। तो आजकल कई कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, वो एक्सेसिव कर रहे हैं। आई गिव यू एग्जांपल, बाइजू। इन जनरल पेरेंट्स के दिमाग में ये हो गया है कि अब इनका फोन ही नहीं उठाना, बिकॉज वो कंटिन्यूसली, स्पेशली एडुटेक कंपनीज, अगर उन्हें गलती से पता चल गया यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस, वो आपको रात को 12 बजे भी कॉल कर सकते हैं। इट्स ओनली बिकॉज इट्स सो प्रेशराइज है, स्ट्रक्चर्ड, बिकॉज उनको लगता है कि ओनली टू अप्रोच यू, ओनली टू जस्ट बम्बार्ड ऑन मार्केटिंग एक्टिविटी, आप उसको ले लोगे। दैट इज नॉट ट्रू। सो दैट्स वाई देयर इज एन थिन लाइन बिटवीन कितना करना है, कितना नहीं करना है। देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूट जिन्होंने किया ही नहीं, उनको ये थोड़ा घमंड हो गया कि नहीं जी हमारा तो रिजल्ट कह रहा है। रिजल्ट आपको पता है, बाहर वालों को नहीं पता। सो दैट्स वाई ए लिमिटेड मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड। आप अपने इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हो, या आप 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों के बीच में ही रह जाएगा। सो दैट्स वाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आज बिल्कुल भी नहीं है, ये जो लिमिटेड से हो चुके हैं। आप करियर पॉइंट की बात कर लें, आप VMC की बात कर लें, आप इवन फिटजी की बात कर लें, आप रेजोनेंस की बात कर लें। तो इन्होंने इनिशियली अपनी मार्केटिंग को बड़ा ही कम कर दिया, और आज वो सिमट के रह चुके हैं सिटी वाइज या सेंटर वाइज, कि इनके 2 ही सेंटर चलते हैं, या ये इसी सिटी में है बस। सो इट्स ओनली बिकॉज उन्होंने मार्केटिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। सो आपको मार्केटिंग भी पैरेलली करनी है, एंड देयर आर 2 वे। वन इज ए स्टैंडर्ड मार्केटिंग अप्रोच, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं टू मार्केट योरसेल्फ, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीम एंड ऑल। एंड देयर इज एन डिजिटल आउटरीच, कि आप डिजिटली लोगों तक पहुंच रहे हो थ्रू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सोशल हैंडलर्स, एंड देयर आर अदर वे ऑल्सो। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड व्हेन एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, तो फाइनली आपको मिलेगी एक परफेक्ट चाय की प्याली। तो यहां पर अगर हम चाय के कप की कंपैरिजन करें, तो इसको IIT एंड गुड मेडिकल कॉलेज से कर सकते हैं, लाइक एम्स एंड ऑल। सो अल्टीमेटली अगर आपकी अच्छी चाय है और वो अच्छे गिलास में चली गई,
बिकॉज गिलास भी कई तरह के होते हैं, आजकल डिस्पोजेबल गिलास भी आते हैं, उसमें चाय का उतना मजा नहीं है, कुल्हड़ का अपना मजा है। सो कुल्हड़, या हम इस कप की बात करें जो आपके सामने है, दिस इज IIT एंड दिस इज एम्स। वाई सो कि आपने किसी को साल भर अच्छा प्रिपेयर करवाया बट वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, एट द एंड जहाँ पे उसको पढ़ना चाहिए था वहाँ पे नहीं पढ़ा, उस कप में नहीं है, तो उसकी वैल्यू फिर खत्म हो जाती है। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप सब कुछ अच्छा बना लें तो मेक श्योर, कई बार लोग एट द एंड इंस्टीट्यूट को लगता है अब हमने इसको सब पढ़ा दिया, अब इसको छोड़ दो। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काउंसिल हिम इवन आफ्टर देयर एग्जामिनेशन ऑफ JEE मेंस, एडवांस और नीट, by which they go or they will opt the best college, because at the end जब वो वहां पहुंच जाएगा उस कप में तो ऑटोमेटिकली पीने वाला आपकी तारीफ करेगा। सो बच्चा अगर अच्छी जगह पहुंच गया तो वो बच्चा आपका वर्ड ऑफ माउथ करेगा। सो दिस इज द एंटायर सेशन। सो दिस इज जस्ट एन एनालॉजी कि अगर किसी को एक अच्छा इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट बनना है तो उसे कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद।